Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we talk about what? Yeah, we have already discussed about how to convert our what? Yesterday we talked about how to convert our hexadecimal number into decimal number. So concentrate here. So we said we have any hexadecimal number, we have divided with 10. Okay, whatever the remainder comes in, put it into the array. Okay, maybe I put it here, and the index of this array is 5 elements, 1 2 3 4 and 5, and this is 5 because we have here the dw, the word size. The maximum of it will be f 4 digits hexadecimal, and we know this is 65535, which is a 5 digits. So maximum capacity we need is a 5 digits decimal conversion from hex to decimal. So we need a 5 5 digits. So for that, 5 blocks of memory in an array. So that's why we need to have an array of size 5 and initialize it all with zeros. Initialize all with what? Index is this 0 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4 5 ना एक extra हो गया ना, 0 1 2 3 4. Okay, because 1 2 3 4 5, and we have to put whatever the remainder comes in. The first remainder comes in has to put in the fourth location, right here, because not here, because if the number is like 720, okay, the remainder which comes in is will be this digit, so it has to be here. Okay, then comes the 2, that has to be here. That comes the 7, that has to be, like if I convert FFF, the first digit, the remainder which comes in after dividing this with the 10 is 5, what we saw yesterday, right? That 5 has to be put where? Here. Then comes, then whatever the coefficient is, again divided with the a, this coefficient, and get the second remainder. Okay, second remainder has to be here. So that means my array should start from here when I start putting it, and then decrement it this way. Okay, so it is the SI, source index, which I will point to 4. I'll point to what? Then I could say whatever the name of this array is. For example, name of array is decimal. Name of the array is what? So I will say decimal of 4, that is SI, equals to whatever I want to put. That is that remainder. That's that, right? Getting any issues? Okay, na? Then I decrement the SI. Then I what? Now SI will point to this. Next time I put again the same thing, decimal of SI remainder. Decimal of SI remainder. How many times I have to do this? Until this coefficient, no, not 4 times, until the coefficient is less than 10. Until the coefficient is until the coefficient is greater than 10, I have to, no, not less than 10, I have to stop then. If less than 10, I stop. How many times I have to do it is until this coefficient is equal to or greater than 10. It is greater than 10, I have to again put it coefficient and divide it with the a, right? Okay, this is the one thing. Second thing is what we are talking about here is when we have to do the division, it could be 8-bit or 16-bit. Right now it is 16-bit because my number is DW. That is 16-bit. That means this will be applied. Okay. Last time I also told you these things, but we were working on the 8-bit only, and this thing worked, right? So what's the difference between this and this? Is if you have an 8-bit number, say for example, whatever the number is, that's 8-bit, and that has to be in the AX firstly. That has where? There is implicit, because when you say div, somewhere you say div CL, for example, here, or BL or whatever. Okay, the dividend is already in where, and you are dividing it with CL. Now this number here has to be 8-bit. For example, if the number is 8-bit, then this will work. Okay, if the number is 8-bit, the dividend has to be in AX. You divide it with some 8-bit register like CL, BL or whatever. Okay, now there two things come, remainder and coefficient. Okay, the remainder will be in the AH. This AX में पहले आपका था ना ये नंबर डिविडेंड, अब ये ओवरराइट हो जाएगा, इसके AH में आ जाएगा आपका रिमाइंडर, और AL में आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट. अगर आपका नंबर है, अगर डिविडेंड कितना है, अगर डिविडेंड आपका 16 बिट है तो ये चीजें नहीं होंगी. पास में आई? यस. अगर आपका डिविडेंड 80 बिट है
तो ये चीज होगी, डिविडेंड हैज टू बी इन द AX रजिस्टर। जिससे भी आप डिवाइड करोगे, जिसमें भी वो आपकी मर्जी है, कौन रखोगे यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है, इट डजंट मैटर। इट कैन बी CL, इट कैन बी BL और एनी अदर। नाउ आपने इसको किया डिवाइड, ठीक है, वेयर विल द रिमाइंडर गो, याद रखना है, मैंने इसी कोड के साथ रखा है। और कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, रिमेंबर दैट थिंग। लेकिन अगर 16 बिट है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है, अभी नंबर छोटा है मगर हमने डेटा टाइप वर्ड साइज रखा है ना, तो आपने जब डेटा टाइप वर्ड साइज रखा है, दैट मींस इट्स नॉट अ 8 बिट, इज 16 बिट डिवीजन। डिवाइड करोगे आप किसी CX से आपने किया, 16 बिट से आपने किया डिवाइड, ठीक है, ओके, एंड दिस इज 60 बिट। एक्चुअली डिवाइजर की ही बात होती है एक्चुअली इसमें, डिवाइजर आपका 16 बिट है कि 8 बिट है, और डिविडेंड भी 16 बिट है कि 8 बिट है। अब आपका जो इसमें पहले जो आपका यहाँ पे जो डिविडेंड रखना है, यहाँ किस में डिविडेंड रखना था, यहाँ पे खाली AX में नहीं, यहाँ पे DX कामा AX में रखना पड़ेगा, दोनों में, दो जगह, ठीक है। तो अगर आपका नंबर खाली AX में पहुंचता है, तो आप DX में पहले 0 डालें, क्या डालें, तो नंबर AX में आ जाएगा। अगर छोटा नंबर है, जैसे हमारे पास ये छोटा नंबर था, क्योंकि ये जो DW आपका है, ये पूछेगा AX में ही, बात सुना है, ओके। अब हम काम करेंगे, जो नंबर हैज टू बी DX कोलन AX, नंबर हैज टू बी वेयर, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रिमाइंडर जो अब आएगा, इसमें रिमाइंडर आता था AH में, इसमें रिमाइंडर कहाँ आएगा, so whenever I divide this thing, I use here CX, for example div CX, so दरअसल में CX से डिवाइड हो गया, नंबर किस में है, DX कोलन AX में, दो चीजें आएंगी, कोएफिशिएंट एंड, जब रिमाइंडर आपका होगा, वो होगा किस में, वो DX में होगा। अब अगर छोटा है रिमाइंडर, तो वो DL में होगा, ठीक है, लेकिन फाइंड किस में करना है, DX में। अब अगर रिमाइंडर 2 आ गया, तो मस्ट पूरे this DX, it will be where in DL, कोएफिशिएंट किधर होगा आपका, कोएफिशिएंट विल बी इन AX। अगर कोएफिशिएंट निकलना है छोटा, because x will contain the 4 digits, the 16 bit। अब अगर x छोटा है, so वो AL में होगा। तो AX में आपको ढूंढना है अपना कोएफिशिएंट, लेकिन होगा किसमें, AL में, अगर छोटा है। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो पूरा x में जाएगा। समझ में आई बात। तो पहली बात हमने ये देखी कि अगर हमारे पास 16 बिट नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं, so dividend is where dx कोलन AX, यानी कि दोनों में होगा। अगर मेरे पास छोटा नंबर है, तो DX में क्या डालना चाहिए, DX में डालना चाहिए 0, वो क्लियर करना चाहिए ना, क्योंकि जब डिवाइड होगा तो दोनों का इकट्ठे होगा ना। सो जब हम इसको कर रहे हैं CX से डिवाइड फॉर एग्जांपल, या BX से करेंगे डिवाइड, सो व्हाटएवर आप डिवाइड करोगे तो नंबर ये दोनों में फाइंड करेगा, इसलिए DX में 0 होना चाहिए, AX में नंबर, ठीक है। अब इसमें कोएफिशिएंट निकलेगा और रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर विल बी इन द DX, रिमाइंडर विल बी इन DX, रिमाइंडर विल बी इन, रिमाइंडर विल बी इन DX एंड कोएफिशिएंट इन, अगर छोटा है तो DX के वो कॉर्नर में होगा और AX में लोअर में होगा, ठीक है, क्लियर, वेरी सिंपल। नाउ सो लेट मी क्लियर दिस, लेट्स कम टू द प्रोग्राम नाउ। ये आया समझ में पक्के से, ओके। मैं इसको ऊपर ही लेता हूँ ये, तो हमारा डॉट मॉडल स्मॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है जी, डॉट मॉडल स्मॉल डेटा, इसमें मैंने लिया नम DW, इसमें आपने वो कल का ही लिया, 0 जो हम लिखते हैं ये लेते हैं बिकॉज हेक्साडेसिमल के लिए जरूरी है 0 लिखना, और H पीछे, तो नंबर मेरा है 2D0, नंबर कौन है ना, मेरा नंबर है 2D0, जो हम आपका 5 का फैक्टोरियल जो आप ढूंढ रहे हैं वही है ना, ये 5 का फैक्टोरियल है, 6 का कैसे है, 6 का है, हाँ 6 का फैक्टोरियल, ओके। 6 into 5 into 4 into 3 into 2, 6 5 is 30, 30 into 4 is into 3, हाँ into 2, that is 720, यह 720 आपका है ना, that is 6 factorial, this one जो कि आ रहा था हमारे पास 2D0, ओके जी। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, इसलिए हम एक एरे पहले रखेंगे एक यहाँ पे, कितने साइज की, 5 साइज की, 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 इंडेक्स लगेगा,
इसका नाम मैंने रखा है डेसिमल। क्या रखा मैंने? इसका नाम है मैंने डेसिमल, क्योंकि मैं डेसिमल आउटपुट है ना मेरा। और db 5 डुप यानी कि एरे बनेगी और सब में क्या जाएगा, सो इनिशियलाइज एवरीथिंग विद 0। ठीक है, मेन प्रॉक शुरू हो गया हमारा। ये हो गया इनिशियलाइजेशन डेटा सेगमेंट की बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा नंबर है नम, ये हम ax में डालेंगे, बिकॉज आई नो द नंबर हैज टू बी एक्चुअली बिटवीन द dx कोलन ax, है ना। मैंने ax में नंबर डाला क्योंकि मेरा छोटा नंबर है, तो मैंने ax अगर बड़ा है तो वो दोनों में डलेगा, उसका अपर हाफ dx में डलेगा, लोअर हाफ ax में डलेगा, और बड़ा नंबर। फिलहाल हमारा छोटा नंबर है, ax में पहुंच रहा है, तो dx में क्या जाना चाहिए, जीरोस। ठीक है ना। फिलहाल मैंने ax में डाला नंबर और cx में डाला 10, 0ah, 0a मींस 10, 0 बिकॉज हेक्साडेसिमल, a मींस 10, सो 10 यानी कि ये जो 10 है वो मैंने किसमें डाला, cx में, और ये जो नंबर है किसमें डाला, सो कुल मिला के ax इज टू dx तो होगा ही होगा, और यहाँ पे cx है। ठीक है जी। ओके, वो dx में 0 मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है ना, ऊपर भी डाल सकते हैं नीचे। अभी मैंने लोड SI में दिया, तो हम दो तरीके से एरे एक्सेस कर सकते हैं कि लोड इफेक्टिव एड्रेस SI डेसिमल, तो SI विल बी पॉइंटिंग टू दिस थिंग, ठीक है, एग्जैक्टली द फर्स्ट ब्लॉक, देन इफ यू से कंटेंट ऑफ SI यू कैन ड्रॉप इट इनटू इट। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने SI में खाली इंडेक्स डाला, दैट इज 4, दैट इज यानी कि यहाँ ये वाला डाला, 4 डाला। क्या डाला मैंने, क्योंकि मैं यहां से शुरू करना चाहता हूँ भरना, ठीक है ना। अब अगर इस एरे को एक्सेस करना है, आई हैव टू यूज द नेम डेसिमल ऑफ SI, है ना। लाइक आपके पास एरे नेम होता है AR ऑफ 4 बोलते हैं ना वैसे, अगर मुझे एक्सेस करना है। अब एरे का नाम AR नहीं है, डेसिमल है, और इंडेक्स के पास है, क्योंकि मैंने पहले ही 4 डाला। So if I say decimal of SI, it means this block, right? अब मैंने यहाँ पे क्योंकि बार बार करना है इसलिए लूप का इंतजाम है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ काम, dx में डाल रहा हूँ मैं क्या, ठीक है, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं क्लियर कर। फिलहाल मेरी एरे है, ओके, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4, ठीक है। And SI is pointing to the 4 index. It is not pointing to this array, mind you. It is only having 4 in it. SI can point to this array if I load effective, if I do like this, load effective address of decimal into SI. यदि calculate if ये है कहाँ डेटा सेगमेंट के अंदर, इसका एड्रेस क्या है, that will load to the SI. Now look here what I am saying. अगर मैं कहूंगा लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ डेसिमल इनटू SI, ये कैलकुलेट करेगा इसका फिजिकल एड्रेस, वो होगा ना कुछ डेटा सेगमेंट में एड्रेस होगा, से फॉर एग्जांपल 2422 व्हाटएवर, उसको ऐड करेगा ये, देन SI इज पॉइंटिंग एग्जैक्टली टू दिस लोकेशन, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी ऐसा is SI pointing to this array? No, it is not pointing to, it is not pointing to this array. SI is no, it is not pointing at all, it's only having 4 in it. 4 is nothing, 4 is not the address of this array, 4 is just 4, number 4 is, it's not the address of this array. वो इसका एरे निकालना, इफेक्टिव एड्रेस निकालना पड़ेगा, बेस एड्रेस क्या है डेटा सेगमेंट का, उसको ऐड करो वो जितना भी है वो बाकी, ये तब जाके वो पॉइंट करेगा इसको, अभी नहीं कर रहा। जब मैं कह रहा हूँ SI इक्वल्स में 4 डाल रहा हूँ मैं, इट इज जस्ट 4, इट इज नंबर 4, इट्स नॉट द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन। इफ आई हैव टू, इसका एड्रेस किसके पास है, डेसिमल के पास, किसके पास है, इफ आई से डेसिमल ऑफ SI, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन। सो फिलहाल SI में 4 है, मैंने ये लूप के लिए यहाँ पे हियर लगाया, क्या किया यहाँ पे, अब dx में मैं 0 डालूंगा पहले, बिकॉज आई नो जो जो डिविडेंड है दैट हैज टू बी dx कोलन ax, ax में मेरा नंबर आ चुका है, dx में क्या आ गया 0 0 0, और ax में क्या होगा हमारे पास, वो ऊपर वाला नंबर दैट इज 2d0, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे इस वक्त वो है 0 0 0 0, dx फुल 0 है, एंड ax में कितना है
02D0 ऐसा है नंबर, ठीक है, ये है मेरा नंबर, ओके। और उसको डिवाइड किससे करूंगा मैं, वो किस में मैंने रखा, नो AX में तो ये नंबर है ना, वो CX में रखा है, ठीक है ना, CX में कितना है 10, दैट इज A, ओके। सो वो हमने यहाँ पे पहले ही डाला ना, इसमें यहाँ पे CX में डाला मैंने A, ठीक है, 0 और H हेक्साडेसिमल के लिए सिंटेक्स है, A डाला मैंने CX में, ठीक है जी। क्लियर क्या किया मैंने अब तक, बताओ जल्दी, सिंपल कोड है, AX में नंबर डाला, CX में 0H डाला, DX को क्लियर किया, ओके, SI में 4 डाला, 4 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ से आना चाह रहा हूँ, जो मेरा रिमाइंडर पहला आएगा वो यहाँ जाएगा, है ना। अब मैं कहूंगा div CX, क्या कहूंगा, div CX मींस गो व्हाटएवर इज जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है डिविडेंड वाला, वो इसमें है नहीं, वो इम्प्लिसिट है। div CX मींस की जो कि आपका dx कोलन AX है, उसको आप CX से क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो CX विल गेट डिवाइडेड विद दिस थिंग। अब जो आपका रिमाइंडर होगा वो किसके पास होगा, dx के पास, कोएफिशिएंट का होगा, अब अगर dx में चूंकि छोटा है तो वो dl के पास होगा, और इसमें कोएफिशिएंट यू विल फाइंड हियर, रिमाइंडर यू विल फाइंड हियर। सो इसमें जो आपको डालना है वो रिमाइंडर डालना है, वो किसके पास है, वो dl में है, क्योंकि रिमाइंडर dx को मैं फाइंड करना है, छोटा है तो dl में लास्ट में होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर व्हाट आई डू, कि अगर मेरा ये इसमें डालना है, क्या डालना है मुझे इसमें, तो इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, डेसिमल ऑफ SI, डेसिमल ऑफ, सो मैंने किया मूव डेसिमल ऑफ SI में कौन, डज इट मेक सेंस नाउ, बिकॉज़ रिमाइंडर इज इन dx का जो dl पार्ट है उसमें, तो जो decimal of SI means pointing to this, only SI I can't say now because SI is only 4, it is not having effective address and all, I can't use only SI, I have to use the array name, I have to use the decimal of SI में DL डाला, ठीक है, ये कहीं बुक पे नहीं मिलेगा आपको, मैंने खुद किया, ठीक है, मेरे दिमाग में आया वैसे मैंने किया, ठीक है, इसलिए आप ये ध्यान दो, ये खुद करना होता है, लॉजिक दिमाग में आया, कैसे मैंने किया, I have seen any book, no, I just see the logic, मुझे डिवाइड करना है, एंड पे रखना है, I haven't seen any book, neither these programs are in any book, do it of our own, you understand, so ये लॉजिक समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग इजी बनती है, सिर्फ टूल्स होने चाहिए, हो गया, इसमें नंबर आ गया, इसको हमें पता है कि डिवाइड करके इसको जो 0 इसको डिवाइड करके पहले क्या आएगा 0, रिमाइंडर आएगा ना 0, दैट 0 विल गो हियर। अब क्या करना चाहिए, क्या SI 4 को ही पॉइंट करेगा, ये 3 करना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई डेक्रीमेंट व्हाट SI। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, कंपेयर, क्योंकि जो कोफिशिएंट आया यहाँ पे, कोफिशिएंट भी तो आएगा ना कुछ, जो कल किया था ना हमने, कोफिशिएंट तो आएगा ना कुछ, वो कोफिशिएंट देखना ना कहीं CX से अगर बड़ा है और बराबर है तो फिर और करो, अगर छोटा है तो बाहर निकलो, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जब कंडीशनल जब लगा रहा हूँ, अबोव और इक्वल, अबोव और, अगर जो आपने कंपैरिजन यहाँ पे लगाया AX CX का, अगर AX जो आपका CX है, जो वो जो है, अगर आपका क्योंकि AX क्यों कह रहा हूँ मैं, AX क्यों कह रहा हूँ मैं, नो, क्योंकि AX में कोएफिशिएंट होगा भाई, इसको डिवाइड करके जो भी होगा ना ये ओवरराइट हो जाएगा AX, तो ये कोएफिशिएंट उस AX में चला जाएगा, ठीक है, वो कोएफिशिएंट AX में चला जाएगा, और हमारा मकसद भी वही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा DX में 0 है ही, AX में नया नंबर नहीं होना चाहिए बल्कि ये कोएफिशिएंट होना चाहिए, वो भी मसला हमारा हल हो गया, वरना मुझे डालना था ना, क्योंकि जो मैं इसको आप करूंगा ये होना चाहिए ना AX में, ये ऑटोमेटिकली गया, बस भाई पहली बार जब मैंने AX में डाला नंबर, पहली बार जब नंबर डाला, जब दूसरी बार कोएफिशिएंट आया वो AX में होना चाहिए डिवाइड करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली गया, क्योंकि कोएफिशिएंट हमें डायरेक्टली कहां जाता है, वो AX में जाता है, सो इसलिए मैं AX और CX में मेरा कौन है बैठा है 10, है ना 10, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, अगर AX में जो बैठा है वो कौन है कोएफिशिएंट, अगर वो बड़ा है या इक्वल है CX से, तब मेरे को इधर जाना चाहिए वापस, देन यू गो टू हियर लेबल, ठीक है ना, अगेन ये फिर से DX में 0 डालेगा, क्या डालेगा, और div CX फिर से डिवाइड करेगा इसको, और जो रिमाइंडर निकलेगा वो किधर होगा, रिमाइंडर कहां होगा, एक्चुअली होगा किसमें DX में, क्योंकि वो छोटा है, एक ही डिजिट है तो इसलिए DL में होगा, वो DL उठा के पटकूंगा मैं कहां पे, डेसिमल ऑफ SI, SI इज 3, सो यहाँ पे पटकेगा
सो 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इस एरे में ऑलरेडी जीरोस होंगे ना, ऑलरेडी पहले जीरोस होंगे सारे, वो किसने किया यहाँ पे, इसने। उसके बाद जब मैं कह रहा हूं, हाँ एक एक अब फिर से ये हो जाएगा कि इससे ये हो जाएगा, फिर कंपेयर लगेगा आपस में। अगर जनाब ये बड़ा है, ठीक है ना, अगर ये जो कोफिशिएंट है जो एक्स में बैठा है वो बड़ा अगर है इससे या बराबर भी है, अगर 10 भी है तब भी डिवाइड करो, ठीक है ना। इसलिए मैं इक्वल में भी कर रहा हूँ, अबव और इक्वल, अबव दोनों सूत्र, क्योंकि अगर इक्वल होगा तब भी कर रहा है ना डिवाइड क्योंकि तब आएगा 10 into 1 is 10 और रिमाइंडर 0 आएगा और क्वेश्चन 1 वो 0 जाएगा ऊपर। ओके, तो उस अगर ना मैं कह रहा हूँ कि ये भी 10 है और कोफिशिएंट भी 10 है और रिमाइंडर भी 10 है, तभी होगा ना, तो रिमाइंडर विल बी 0 जो कि उधर जाएगा, फिर 1 जाएगा उधर। उसी सूरत में रुकना चाहिए जब ये बंदा छोटा इससे, इसलिए जब अबव एंड इक्वल, ओनली इक्वल पे नहीं, अबव एंड इक्वल। ओके, तो फिर से करेगा ये, फिर उधर 7 निकलेगा रिमाइंडर, वो हम यहाँ डालेंगे। अब जो 7 शायद ऊपर गया, 2 रिमाइंडर के वक्त 7 ऊपर था, तो 7 हमने जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे डाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जो ये निकलेगा बाहर, निकलेगा ये जब बाहर निकलेगा इससे निकल गया। उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, प्रिंट डिस्प्ले में मुझे क्या करना है, प्रिंट ये एरे है ना। कुछ नहीं करना है, देखो 720 आ गया मुझे इसमें एरे में, और आगे दो वालों में क्या होगा 0, यही तक था ना। मुझे सिर्फ एक चीज करना है, एसआई को पॉइंट करूंगा मैं 0 पे। किसको प्रिंट करूंगा, करो 5 बार प्रिंट। किसको करोगे प्रिंट 5 बार, डेसिमल ऑफ एसआई को, और एसआई को करो इंक्रीमेंट। एसआई को क्या करो, इंक्रीमेंट करो, एसआई ऐसा चलेगा आगे, डेसिमल ऑफ आई प्रिंट, है ना। प्रिंट किससे करोगे, ये किसमें डालेंगे 0 डैश, और नंबर ये नंबर है वो प्रिंट होने के लिए वो किसमें डालना है, डीएल में। सो डीएल में क्या जाएगा, डेसिमल ऑफ एसआई, डेसिमल ऑफ, पहला एसआई में 0 है ना, तो पहला 0 चलेगा डीएल में, इंटरप्ट 21 उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। एसआई को इंक्रीमेंट किया, फिर से डालो डेसिमल ऑफ एसआई डीएल में, है ना। फिर एसआई को इंक्रीमेंट करो, कुल कितने बार करोगे, तो इसलिए सीएक्स में डालो 5, और ये लूप से करो, किससे, लूप खुद ऊपर जाएगा, होगा ना वो कुछ वहां पे लेबल, किसी लेबल के ऊपर, और वो डेक्रीमेंट खुद हो जाएगा, 5 4 3 2 1 0, तुम खत्म। समझ आ रहा है, हाँ। अब देखें यहाँ पे सिंपल है, स्क्रीन में नहीं आ रहा ना, अब आ गया। ये प्रिंट डीएल आपका है, ये प्रिंट डेसिमल आपका है प्रिंट डेसिमल कुछ नहीं करा, एरे प्रिंट करनी है, ठीक है ना। हमने मूव एच में 0 to h किया मैंने, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट प्रिंट करनी है 0 to h। सीएक्स में 5 डाला क्योंकि एरे 5 है। एसआई में क्या डाला, सो एसआई में 0 डाला, ये मेरी एरे है, इसमें 720 बैठा हुआ है, पहले स्टार्टिंग में क्या है 0। एसआई में क्या डाला मैंने 0 यहाँ पे, और सीएक्स में कितना डाला मैंने, तो 5 बार चलेगी लूप, पता है। ये रिपीट और लूप रिपीट जो मैंने किया ना, ये चलेगा जब तक सीएक्स 0 नहीं होता, जो आपका न्यूमेरिकल थी ना वो क्वेश्चन, वो सॉरी है, दिमाग रख यहाँ पे, जो तेरा क्वेश्चन था ना वो ऑब्जेक्टिव वाला, कि भाई सीएक्स ये कब स्किप करेगा कोड, जब सीएक्स 0 हो जाएगा। तो जब सीएक्स 0 हो जाएगा लूप स्टेटमेंट, जब सीएक्स 0 हो जाएगा ये ऑटोमेटिक डेक्रीमेंट करेगा ना, जो ही सीएक्स 0 होगा ये इससे बाहर आएगा। तो डीएल में क्या डाला मैंने, decimal of SI means content of the decimal of 0, that is 0 only, that 0 will be in the DL, okay, and this DL will be printed। लेकिन पहले इसको 30h करना है, so इसको 30h करना है ऐड, या 48 ऐड करना है, so S की 48 that will be printed। इंक्रीमेंट करेंगे SI को, SI is now 1, तो ये वापस जाएगा क्योंकि CX will be 4 now, ठीक है। अब decimal of 1 that is 0, ये वाला एलिमेंट ये जाएगा किसमें, डीएल में, डीएल प्रिंट होगा, एसआई इंक्रीमेंट टू 2, सो ठीक है, सीएक्स विल बी 3। करो प्रिंट, अब ये करो, फिर ये प्रिंट, फिर ये प्रिंट,
cx बनेगा 0, it will come out of it, right? Let's execute this. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Let us simulate this. Let us run this. It will work perfectly fine. 00720. अगर हमारा नंबर होता मैक्सिमम, कौन, ये हर एक नंबर के लिए काम करना चाहिए ना, अगर हमारा नंबर होता ये यहाँ पे 0 f f f f मैक्सिमम 0 लगाना पड़ेगा ना, तो 6233 क्या था, 6355535 आ गया ना परफेक्ट. सो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हमने परफेक्ट किया. अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि अगर आपको वो जो प्रोग्राम हमने किया था फैक्टोरियल का, उसमें क्या करना है, कॉल प्रिंट, कॉल हैक्स टू दिस, उसमें ये चीज लगानी है, आप ये चीज ऐड करना है, बिल्कुल यही कोड करना है, वहां पे लगाना है, वहां पे खाली कॉल रखना है. प्रिंट जब आप कर रहे थे, तो प्रिंट जो आप कर रहे थे, करा रहे थे ना, वो प्रिंट नहीं करना है, उसमें प्रिंट कर रहे थे, वहां प्रिंट की जगह इसको प्रिंट करें, प्रिंट हैक्स टू दिस व्हाटएवर. ये मेन प्रॉपर्टी रहेगा, ये अपना एक रहेगा डेसिमल टू हैक्स टू डेसिमल, इसका नाम रहेगा कुछ, ठीक है. अभी आप एक करोगे फिर बाद में करोगे, ठीक है ना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. डज इट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस?